किस तरह तरीके दसदे ने, किस तरह संसार तो पार भवजल चो पार होने के तरीके दसदे कवीशरी जथा है। ऐं बयान ऐसे विरले ही आण जग ते जी, ऐसे विरले ही आण जग ते, भजन कर ज्ञानी बन दे त्यागी, भगत सदाण जग ते जी, त्यागी भगत सदाण जग ते। साधु जमदा ते मरदा ना जी, साधु जमदा ते मरदा ना, धरती ते भार पापां दा कोई साध बिना थमदा ना जी, कोई साध बिना थमदा ना। रब दे अवतारी जो जी, रब दे अवतारी जो, साध दे हुक्म विच है दिसे, सृष्टि ये सारी जो जी दिसे, सृष्टि ये सारी जो। दुख दुखियां दे कट जांदे जी, दुख दुखियां दे कट जांदे, ढोई फिर मिलेगी तो ना जी, जदों साधु मुख वट जांदे जी, जदों साधु मुख वट जांदे। चाहे फटे हुए कपड़े ने जी, चाहे फटे हुए कपड़े ने, छेड़ो ना फकीरां नू, फकीरां नू जी, जेड़े रब ताई अपड़े ने जी, जेड़े रब ताई अपड़े ने। जग दे विच आम नहीं जी, जग दे विच आम नहीं, फकरां दी जात कोई ना जी, हुंदे किसे दे गुलाम नहीं जी, हुंदे किसे दे गुलाम नहीं। डर किसे दा भी रख दे ना जी, डर किसे दा भी रख दे ना, रहन विच दुनिया दे जी, दुनिया भी पख दे ना जी, दुनिया भी पख दे ना। जग तारण लियाउंदे ने जी, जग तारण लियाउंदे ने, हर हर जन एक है जी, ज्योति जोत समांदे ने जी, ज्योति जोत समांदे ने। ओह सदा ही जिउंदे ने, ओह सदा ही जिउंदे ने, ओह सदा ही जिउंदे ने जी, ओह सदा ही जिउंदे ने। गौण नू काल ताई ओ जी, लोक उन्हां ताई गाउंदे ने जी, लोक उन्हां ताई गाउंदे ने। पौड़ी धर्म दी जान लइए जी, पौड़ी धर्म दी जान लइए, सोने गुर जंट बैंकिया जी, लड़ साधुआं दा फड़ लइए जी, लड़ साधुआं दा फड़ लइए जी, लड़ साधुआं दा फड़ लइए। कवि कहंदा कदे मंत्रा नाल नहीं, कदे मसाल बलदी, तेल मुके तो दीवा हो गुल जावे। नाल मंत्रा नहीं, मसाल बलदी, तेल मुके तो दीवा हो गुल जावे।
ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਹਰਫ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੌਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਚਲੋ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੀਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੀਤ ਦਾ ਕੋਝਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਆਇਆ ਦਸਵੰਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਝ ਦੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕਾਹਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਿੱਠੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਿਰਥੀਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਹਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਿਰਥੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੰਕ ਪਾ ਕੇ ਕਾਹਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 3 ਅੰਕ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਅੰਕ ਉਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਉਚਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੂੰ ਲਿਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੱਲੇ ਸਹਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਅੰਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਲਾਇਆ, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसन न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हाँ कोली जियो कोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। चौथा अंक उच्चारण कर दिता। गुरदेव पिता ने उस वेले हुक्म कर दिता, गुरियाई दा वारस अर्जन देव होवेगा। प्रिथवी चंद सड़न जोगा रह गया। गुरदेव पिता गुरु अर्जन देव महाराज नूं नाल लैके गोइंदवाल दी धरती ते आए ने। गोइंदवाल दी धरती ते चौथे पातशाह महाराज ने शरीर छड्डिया। बाबा बुड्ढा जी नूं हुक्म कीता कि गुरियाई दा तिलक ये अर्जन देव नूं दे दिता जावे। हुण प्रिथवी चंद ने रौला पाउणा शुरू कर दिता, अर्जन देव गुरियाई सामने मारे पिता नूं जहर दे के मार दिता गोइंदवाल दी धरती ते। पर इहदा किसी ने रौला नहीं सुनिया। हुण जदों गुरियाई दी पग बन्ननी सी, बाबा बुड्ढा जी 2 पग्गां लेके आया, एक पुत्र परखी एक गुरियाई पुरखी। प्रिथवी चंद नूं पुत्र वाली पग दे दिती गई ते गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरियाई दी पग देन लगे, वो भी प्रिथवी चंद ने खोली। गुरु अर्जन देव महाराज ने गिला नहीं कीता। हुण प्रिथवी चंद गुरु घर दे नाल ईर्खा करन लगा। गुरु प्यारिओ, आई गई संगत दी भेटा रस्ते विच रोकन लगा, लंगर मस्ताना होन लग्या। गुरु अर्जन देव महाराज दे सेवक बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी आदि सिखां ने संगतां नूं प्रेरित करके गुरु घर विच लियाउणा शुरू कीता। लंगर फिर जारी होन लगे। इधर प्रिथवी चंद साड़े दे मारे ने हेर पिंड जाके डेरा कीता। हेर पिंड जाके इन्हें पट्ठे ला दिते। ये पहुंचा लाहौर, सुली खान दे कोल 10,000 रुपया रोज दा देना करके सुली नूं चाड़ के लेके आया कि अर्जन देव नूं खत्म कर दिता जावे। गुरु प्यारो, लोग कहिंदे भरा भरा दी बाह हुंदे ने, पर जे भरा नाल भरा दी विगड़ जे ते इहदे नाल वड्डा दुश्मन भी कोई नहीं हो सकदा। प्रिथवी चंद ने दिल विच ठान ली कि मैं अर्जन देव नूं जींदा नहीं रहन देवांगा। गुरु के पुत्र ने दोवें, ये दोवें भरा ने। वड्डा भरा छोटे नूं मारना चाहुंदा। सुली खान चढ़ के आया। जदों पट्ठे वेखण वास्ते हेर पिंड रुकिया, घोड़ा बेकाबू होया, पट्ठे ते चढ़ गया ते सुली खान सड़ के सुआह हो गया। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸੁਲਭੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ताकत विद्या दे नाल खत्म कर दिता। सुलभी खान तैयार होने लगा, पेट विच सूल होया। गुरु प्यारे, वो लाहौर ही खत्म हो गया। सतगुरु महाराज तक कोई पहुंच के ना आया। दूसरे पासे चंदू दवान जी दी लड़की जवान सी, इन्हें लागियां नूं भेजिया कि चंगा वर मेरी वजीरी दे मुताबिक तू लभ के आउणा है। उदों गुरु प्यारे लागी महरा ते नाई जाया करदे सन। अज वाला समा नहीं। ये लभदे लभाउंदे कई जगह ते पहुंचे, जिथे लड़का चंगा मिलदा उत्थे कमाई वाला नहीं। ये पहुंचे ने श्री अमृतसर साहब, गुरु महाराज दा लगा दरबार, मत्था टेकिया। सतगुरु महाराज दा साहिबजादा गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सामने बैठा। सिखां नूं पुछया, ये बच्चा कौन है? संगतां ने दस्सिया, पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज दे साहिबजादे हरगोबिंद ने। उस वेले पंचम पातशाह महाराज दे कोल पहुंचे नाई ते मेहरा। कहन लगे, महाराज जे तुहाडा हुक्म होवे ते चंदू दवान दी लड़की दा रिश्ता तुहाडे साहिबजादे नूं कर दईए। सतगुरु महाराज कहंदे, जी आया जी आए हो तो कर दिओ। हुणे हां करके पहुंचे ने लाहौर। जाके चंदू दवान नूं कहन लगे, तेरी लड़की वास्ते असीं रिश्ता लभ आए हां। चंदू दवान ने पुछया, किहड़ा? कहन लगे, दुनिया दे मालक सोढ़ी पातशाह गुरु रामदास महाराज, उन्हां दा साहिबजादा हरगोबिंद, ओनूं तुहाडी सपुत्री दा रिश्ता कर आए हां। इन्हें वडियाई जताउण दे मारे कह दिता, वो चबारे दी इट
एक मोरी विच ला दिती। ओ गुरु घर दियां ओ संगतां दियां गराइयां खाण वाला ते मैं एक वजीर, तुहानू शर्म ना आई? मेरी लड़की दा रिश्ता उत्थे एक साधु दी पुत्र दे नाल कर आए हो। इत्थे संगतां ने सुनिया चंदू दीवान दे बोलां नू, चिट्ठी लिखी। इधर चंदू दीवान दे लागी आए ने सतगुरु महाराज दे साहबजादे नू रिश्ता करन वास्ते। दूसरे पासे चिट्ठी गुरु की संगत दी पहुंच गई, लाहौर दी संगत दी। ओदे ते लिखिया सी, पातशाह जे संगत दा हुक्म तुसी मानदे हो ते चंदू हंकारी दी लड़की दा रिश्ता नहीं लिया जाएगा। ये गुरु घर नू एक मोरी दसदा ते अपने आप नू चबारा दसदा है। सतगुरु महाराज ने चिट्ठी वाची, संगत विच सुनाई। ओ नाई ते महरा आए ने सगन लैके। सतगुरु महाराज ने मुंह तोड़वा जवाब दिता, कहन लगे भाई संगत ने कह दिता ते संगत दा हुक्म साडे सिर मथे असी मनन लई तैयार नहीं। वो वड्डा ते वड्डियां नाल मत्था लावे, असी आप तो छोटियां नाल मत्था ला लवांगे। चंदू दीवान भी सतगुरु महाराज नाल ईर्खा करदा सी। चंदू दीवान दे कोल पहुंचा पृथ्वी चंद, एक भगत कन, ये तीन जने रल के जहांगीर बादशाह दे कोल पहुंचे ने। जाके जहांगीर बादशाह दे कन भरने शुरू कीते। कहन लगे बादशाह जेड़ा अर्जन देव अमृतसर दी धरती ते बैठा ना, उन्होंने एक बाणी दा जहाज बनाया जिन्हों कहंदा बाणी दा जहाज। ओदे विच मुसलमान दी सिफत नहीं लिखी, मुसलमान नूं माड़ा दस्या गया। आ पृथ्वी चंद दा गोटा गद्दी ते हक सी, उन्हां धक्के नाल साम लिया ते मेरी लड़की दा रिश्ता उन्हां ना कर दित्ते, कहंदे नहीं लेना। ते तुहानू भी माड़ा दसदा, तुहाडा पुत्र खुसरो जदों बिगावत करके गोंदवाल दी धरती ते पहुंचा सी, उन्हां ने कोल बहा के ओनू लंगर छकाया, पैसे दिते ते बुराई दा तिलक लाया। कन्ना दे कच्चे बादशाह, अखां दे अन्ने बादशाह ने चिट्ठी लिखी चंदू दीवान ते पृथ्वी दियां गल्लां विच आके पंचम पातशाह वल्ले ओ लैके चिट्ठी। उन्हां दा हंकारा जदों अमृतसर दी धरती ते पहुंचिया ते लिखिया सी, महाराज तुसी मेरे कोल आओ, मैं तुहाडे नाल कुछ चंद गल्लां करनियां ने। जे ते आ गल्लां तुसी मन लो ते ठीक है, नहीं ते 2 लाख रुपया जुर्माना सरकार वजों तुहानू कीता जांदा, शाही खजाने विच जमा करना पवेगा। सतगुरु महाराज ने चिट्ठी वाची, संगत नू सुनाई। हरगोबिंद नू कोल सद के हुक्म कीता, बेटा जालम सरकार प्रेम नाल मनन वाली नहीं। पहले गुरु नानक तो लैके चौथे पातशाह तक शांतमई जंगे सरकार नाल हुंदे आए ते असी चले आ लाहौर, शांतमई शहीदी देंगे। जे पापी दिल ना पसीजिया ते याद रखी बेटा फिर तलवार चुकनी पवेगी। उन्ना चिर जालम नाल लड़दा रहना जिन्ना चिर जां ते जुल्म ना खत्म हो जाए, जालम ना खत्म हो जाए। पंचम पातशाह महाराज होए ने तैयार, संगतां विराग विच आईयां, अखां चों हंझू आ रहे ने। सतगुरु महाराज फिर किदों मिलोगे? पंचम पातशाह महाराज कहंदे लाहौर जावांगे, सीस दा बलिदान दे देवांगे ते जालम दी जड़ जड़ां तो पुट देवांगे। जिस तरह पंचम पातशाह महाराज अमृतसर दी धरती तो लाहौर नूं जाण वेले सिंखां नूं संबोधन करके उपदेश दे रहे ने कि विछड़ी जता है। कीतिया सिंघां ने जदों अरजोई जी, हो के तेन संगतां कतलाब पुर नू तैयारी होई जी, गुरां नू कहण संगतां। हो कहंदे बादशाही नू आसां ने कटना, नीहां नू काल के राज है मलेशां दा जेहड़ा चों पटना, लाहौर सीस वार के। कीतिया सिंघां ने जदों अरजोई जी, हो के तेन संगतां कतलाब पुर नू तैयारी होई जी, गुरां नू कहण संगतां। ओ कहंदे बादशाही नू आसां ने कटना, नीहां नू काल के राज है मलेशां दा जेड़ा चों पटना, लाहौर सीस वार के। उच्ची हस्ती दा सीस होर होना है, कुर्बानी साडी ने अठवां ते नौवां गुरु भी बचाउणा है, जुल्मी तेग डाडी ने। चौहां साहिबजादियां दा सीस कटना, नाल तलवार के
राज है मलेशां दा जेड़ा चों पटना लाहौर सीस वार के ओ चंदू पंपिया सादी संतालू जिंदनू चंदू पापी असा दिस तालू जिंदनू नहीं मैनू टैग है आपे ले लू बदला हरी गोबिंद जी लाल मेरा लैक है दुनिया दे विचों एही लाहा खटना अवतार तार के राज है मलेशां दा जेड़ा चों पटना लाहौर सीस वार के ज्यादा टांग पादू ले जहान च मुगलां नू रोड़ दू गज्जू मग मर्ग बन के जहान च शांत मैनू तोड़ दू एहो तुहाडा गुरु तुसी एनू मन्नना आख दे उचार के राज है मलेशां दा जेड़ा चों पटना लाहौर सीस वार के पैसे पंज तेन तेल है मंगा लिया नाल गाया बिंद नू रख के मूरे ते शीस नू नवा दिता सी हर गोबिंद नू मेरी पीरी धियां दोवें तेगा डटना चपालियां शंगार के राज है मलेशां दा जेड़ा चों पटना लाहौर सीस वार के तुर पैने पंजे सिंह गुरु पास ले तुर पैने पंजे गुरु सिंह पास ले अमृत वेला सी रोम दी संगत होए के उदास है आखिर जो मेला सी करतार सिंगा जग पापां दा पलट्ठा है लहू दी बूंद डार के राज है मलेशां दा जेड़ा च पटना लाहौर सीस वार के राज है मलेशां दा जेड़ा चों पटना लाहौर सीस वार के कवि कहंदा कदे बनदे इतिहास नहीं इस गल्ले कि असीं राजियां दे किन्ने पूर जम्मे आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जम्मे मिलदे मौत नूं गली जो हार पा के जिंदगी वेचना उन्हां दे हार वेखी जिहदी झोली शहीदां दे फुੱਲ बहुते उसे कौम दे बागी बहार वेखी धन हन पंचम पातशाह महाराज आप मौत वरण वास्ते ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਦਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਡੋਲਦੇ ਨੇ सतगुरु महाराज कहते कोई गल नहीं साडा पुत्र हर गोबिंद इनू साडा ही रूप समझना असी हुण लाहौर चले आ जहांगीर पातशाह की चिट्ठी आई जे ना पहुंचे तो सोचेगा कि पंचम पातशाह महाराज मरनों डरदा है बाबा कबीर कहंदा कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद सतगुरु महाराज आप ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪੈੜਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪੋਖਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ सिद्धू जट मन ही मन इन्ना खुश होया दुनिया नू तारन हारे सतगुरु महाराज गरीब दे घर नू भाग लाउण वास्ते आ गए ने हुण मैं रज के सेवा करांगा संगतां आ रहीआं ने सतगुरु महाराज दे दर्शन दीदारे करदियां ने मत्था टेकदियां ने इधर किसी ने जाके जहांगीर बादशाह नू दस्सिया कहंदे बादशाह अगे ते सतगुरु ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दी धरती ते मत्थे टकाउंदा सी ना अज ते लाहौर तेरी बादशाही दे विच आके भी मत्थे टकाउण लग गया जाके तां वेखो उसे वेले जहांगीर बादशाह ने वजीर खान कोल सद्या हुक्म दिता हुणे ही पंचम पातशाह महाराज नूं सद के लिआंदा जावे वजीर खान सतगुरु महाराज दे चरनां दा भौरा सी गुरु प्यारिओ चरनां दा भौरा सी पर बादशाह दा हुक्म जाके सतगुरु महाराज नूं दस्सिया कहण लगा महाराज सच्चे पातशाह आप जी नूं जहांगीर बादशाह याद करते ने कहंदे छेती आओ सतगुरु महाराज पंचम पातशाह महाराज सिद्धू जट दे घरों
जहांगीर दे दरबार विच पहुंचे ने जाके जहांगीर बादशाह ने अपने मुर्शद वाली अपने गुरु वाली चंदन दी चौंकी डाई उत्ते सतगुरु महाराज नूं बिठाया बड़े आदर सत्कार दे नाल सेवा कीती ते कहन लगा महाराज तुहाडे नाल कुछ बचन बलास करने ने। सतगुरु महाराज कहंदे बादशाह अमृतसर दी धरती तो चल के तुहाडे नाल बचन बलास करन वास्ते ते आया करो केड़े करने ने। जहांगीर बादशाह ने पहला बचन सतगुरु महाराज ते जेड़ा कीता कहन लगा महाराज मेरा पुत्र खुसरो जदों भज्जा सी बगावत करके वो इथों चलदा होया गोंदवाल दी धरती ते पहुंचा तुसां नूं कोल बिठा के लंगर छकाया तुर लगे नूं माया दिती ते गुरियाई दा तिलक दिता कि तुसां क्या सी एक दिन पिता दी गद्दी दा मालक तू बनेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ने ਤੁਹਾਨੂੰ 2 लाख रुपया जुर्माना लिखिया 2 लाख वो जमा कर दो सरकारी खजाने विच। सतगुरु महाराज मुस्कुराए कहन लगे ओ जहांगीर बादशाह एक गुरु घर है गुरु नानक दा दर है इत्थे जैनी आवे बोधी आवे खत्री आवे मुसलमान आवे सिख आए ईसाई आवे वो लंगर छक सकदा है। ये गुरु घर है गुरु नानक दा घर है इत्थे किसे नूं मनाही नहीं। जेड़ी गल तू कही ना पैसों वाली गुरु नानक दे घर विचों किसे नूं पैसा नहीं दिता जांदा ये गुरु घर च लगदा है। सतगुरु महाराज नूं जहांगीर बादशाह कहंदा महाराज दूसरी गल जेड़ा तुसीं लिखिया बाणी दा जहाज जिन्हों कहिंदे हो बाणी दा जहाज संगतां नूं तारन वास्ते आया जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब बनाया इहदे विच तुसीं हजरत मुहम्मद साहब दे 2 शब्द पा रहे हो बाकी गल्लां तुहाडियां माफ कर दित्तियां जाणगियां। सतगुरु महाराज मुस्कुराए कहन लगे ओ बादशाह ये साडी बाणी नहीं ये धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई ये अकाल पुरख दी बाणी है धुर तो आई है इहदे विच एक अखर पाया नहीं जांदा ते एक अखर कढ नहीं सकदे। असी किसे नूं माड़ा नहीं कहा ये अकाल पुरख ने जिहड़ी धुर की बाणी पाई वो लिख दित्ती गई। फिर जहांगीर बादशाह ने तीजा सवाल सतगुरु महाराज ते कीता कहन लगा महाराज गद्दी ते हक पिरथी चंद दा सी तुसी धक्की नाल खो लिया पिरथी चंद नूं गुरियाई दे दित्ती जावे। सतगुरु महाराज मुस्कुराए कहन लगे ओ बादशाह की दियां गल्लां गुरियाई दियां ते किन्ने धक्के ना खोया पिता पुरखी गद्दी है पिता जिन्नू चाहे अपनी जायदाद दे दे जींदा जींदा कोई धक्के ना नहीं लै सकदा। पिता ने गुरियाई सानू दित्ती ते असी गुरियाई कर रहे हैं। चंदू दवान दी लड़की फिर जहांगीर ने सवाल किया कहन लगा चंदू दवान दी लड़की ओदा रिश्ता ते प्रवान करना ही पवेगा वो अजे तक कुवारी घर विच बैठी है। सतगुरु महाराज मुस्कुराए कहन लगे बादशाह तू जो करना कर ले चंदू दवान ने जो करना कर ले सानू संगत ने लेके कह दिता कि इस हंकारी दा रिश्ता नहीं लिया जाएगा ते संगत दा हुक्म असी सिर मथे ते मनदे हां। संगत दा हिस्सा साडे तो एक उच्चा 21 दर्जे है गुरु 20 दर्जे ते संगत 21 दर्जे। गुरु प्यारिओ जदों पंचम पातशाह महाराज लाहौर गए सी ना ते तुसी सुनिया है एक पट्ठे लाए सी गुरु के प्यारे ने ते सतगुरु महाराज अरदास करदे सी इहदे पक्के बुद्धू दे पक्के पट्ठे हो जाण ते लखू गुरु का सिख बाहर बैठा सी उन्हें कुंडा खड़काया कहन लगा गुरु का लंगर चलदा गुरु का लंगर आपां लंगर भावें आप तैयार कीता होवे जदों अरदास हुंदी है ना उच की कहा जांदा गुरु का लंगर टहल सेवा सिखां दी ते लंगर गुरु का अरदास होई गुरु का लंगर ते वो कहंदा तेरे वर्गे पागल नूं अंदर ले जावां गुरु महाराज लंगर छकदे ने वो छक लैण फिर छकाया जाऊगा। जदों अरदास होई पंचम पातशाह महाराज कहन लगे बुद्धू दे आवे पक्के ते लखू बाहर 3 वारा क्या महाराज कच्चे बुद्धू दे आवे कच्चे। सतगुरु महाराज कहन लगे बुद्धू एक रब दा प्यारा बाहर साडे तो उच्ची हस्ती दा मालक ओनू बाहर खिलारिया तेरे आवे कच्चे रहणगे। कहन लगा महाराज ओ तुहाडे तो वड्डा पंचम पातशाह महाराज वजद विच आए मुस्कुराए कहन लगे बुद्धू यही ते तेनू भेद नहीं संगत 21 दर्जे ते गुरु घर 20 दर्जे है। संगत दा हुक्म गुरु नहीं टाल सकता ते गुरु दा हुक्म संगत टाल सकती है। संगत गुरु दा लिखिया ओनू मोड़ सकती है पर संगत दा